Good morning, everyone. Today, I, Mrs. Nikki Shweta, welcome you all, my dear 10th standard students, for an overview to online quarterly exam 2020-2021. See, now your question should be in your mind why we are giving you such kind of presentations and videos. So for answer of this, my suggestion is that this time, due to the pandemic COVID-19, we are having the problem to organize the exam in the usual way. So this time we have opted for the online quarterly exam of yours. So we need to give you an overview how we are going to start with this exam, what is the purpose and what is the pattern of this exam. Okay, so first of all, how are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. So we'll start with the presentation. So quarterly exam 2021 your examination will be started from 4th of August. The mode of examination means how the examinations are conducted. It is online exam. You have already gone through the mock tests. You are already giving these mock test exam in the online manner. It is the same like that. Total marks of examination will be 40 marks. See students, in mock test you are solving only 20 questions, but here in this exam you have total 20 questions and total 40 questions of 1 marks each. Mock test 20 marks का आपने दे लिया, but here we are having 40 questions and each question is of 40 marks. Total time for examination will be 1 hour. It is from 8 to 9 AM. सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कि एग्ज़ाम इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 4th of August. एग्ज़ाम इज़ ऑनलाइन. Total 40 MCQ questions are there and exam timing is of 1 hour. Examination will start at 8 AM and ends by 9 AM. Link will be updated on broadcast group at 7:55 AM by the class teacher. Same as the mock test. आपको broadcast group पे active रहना है इस time पे to see the link. And as soon as you receive the link, you have to start the exam. Get ready to submit the paper by 8:55 by keeping one alarm to avoid any kind of delay. See students, due to some problems, you are not able to submit the paper. So you have to get ready. आपके पेपर को ओवरव्यू करके पूरा ध्यान देके आपको देख लेना है कि वो पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है एंड देन यू नीड टू सबमिट इट. सबमिशन के लिए आपको थोड़ा पहले से ट्रायल करना है. मे बी ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज़ और एनी इंटरनेट इश्यूज़, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सबमिट इट तो आपका पेपर बाद में एक्सेप्ट नहीं होगा बिकॉज वी हैव फिक्स्ड द टाइमिंग. इट इज़ द ऑनलाइन एग्ज़ाम. स्कूल के आपके एग्ज़ाम नहीं है कि टीचर प्लीज़ 1 मिनट, टीचर हमने अभी नाम नहीं लिखा, रोल नंबर नहीं लिखा. दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल इन द ऑनलाइन एग्ज़ाम. To avoid network issues, check your internet connections before exam. आपके घर पे जहाँ भी इंटरनेट ठीक से आता है वहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, नेटवर्क इश्यूज़ को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे एंड गिव द एग्जाम्स प्रॉपरली. Students, in the mock test we have seen that you are not filling your roll numbers, your divisions properly. So fill all the necessary information correctly. Name, student's name should be proper with surname because sometimes same names are there, so we can differentiate on the basis of surname. Roll numbers in digit. Division you have to choose from the options, so choose your correct division there. Keep a rough notebook and pen near you to solve the problems. See, this point is very important in the terms of science and maths where you need to solve anything. In science also, from the lesson electricity, you are having problems, so you need to solve that problems.
All questions are compulsory. Try to attempt all questions. Check properly before submissions for any mistakes and missed question. आपका कोई question रह गया हो या गलत हो गया हो. See students, assessment is to check the understanding of subject and assess the progress of yours, which is the motive of study. हम पढ़ते क्यों हैं? अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, हमें क्या हमने सीखा है उस सब्जेक्ट से, इसके लिए. सो यू आर एट होम, सो इट इज़ माई बिलीव कि आप वहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक या इंटरनेट को यूज़ नहीं करोगे आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए. सो अवॉइड ऑल द अनफेयर मीन्स टू आंसर द क्वेश्चंस. आप ऐसा नहीं करेंगे. दिस इज़ माई बिलीव एंड यू कीप माई बिलीव इन योर माइंड. सो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. सिलेबस ऑफ साइंस. Science syllabus is from all three parts: chemistry, biology and physics. Lesson number 1, chemical reactions and equations. Lesson 2, acids, bases and salts. Lesson number 6, life processes. Lesson number 12, electricity. These 4 lessons are here. We have covered lesson 7 also, but it is deleted now, so that lesson is not for you. When we are giving you the portion paper, in that you can check it properly. Okay, so lesson 1, 2, 6 and 12, these 4 lessons are there for the exams. Pattern of examinations. All the questions are of multiple choice questions. 4 options will be provided for each question. आपको एक question के लिए 4 option रहेंगे. You have to choose most appropriate or correct answers. In the science, questions are all types. See students, you are in 10th standard, so you have faced all type of problems only in the 9th standard, so that type of problems only here. Simple sentence based MCQs रहेंगे. न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स, इक्वेशंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस एंड असर्शन रीज़न क्वेश्चन. असर्शन रीज़न में आपको एक सेंटेंस दिया होता है और उसके साथ एक रीज़न होता है वहाँ पे, एंड देन यू हैव टू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस you have already faced in the 9th standard. So you practice these types of MCQ. Nowadays many MCQs are available online also. You download it and practice it more and more, because in your textbook MCQ questions are very less. So you need to practice it. और पहली बात, आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है MCQ को सॉल्व करने के लिए. ओके, इंटरनल असेसमेंट. सी हमने अपने पहले वीडियो में भी आपको इंटरनल असेसमेंट के बारे में बताया है. यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आपको इंटरनल असेसमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पता है. बट हियर अगेन 20 मार्क्स आर फॉर इंटरनल असेसमेंट, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम हम बोर्ड को भेजते हैं. बट दैट इज़ नॉट ओनली फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम. बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम हम वो मार्क्स भेजते हैं, लेकिन हम उसका पूरे ईयर असेसमेंट करते हैं. पूरे साल भर हम जो देखते हैं वैसे मार्क्स आपको मिलते हैं. सो 5 मार्क्स इज़ फॉर पोर्टफोलियो, जिसमें आप नोटबुक और अभी आप पोर्टफोलियो के लिए वर्कशीट्स भी सॉल्व कर रहे हैं. 5 मार्क्स इज़ बेस्ट ऑफ 2 एग्ज़ाम. अभी क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ, हाफ ईयरली होगा और फिर एक आपका प्री एनुअल एग्ज़ाम होगा, उसमें से हम बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स लेते हैं. 5 मार्क्स इज़ फॉर सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी. इन साइंस इट इज़ प्रैक्टिकल. 5 मार्क्स इज़ फॉर मल्टीपल असेसमेंट, जहाँ पे कि जनरल ऑब्जर्वेशन, क्लास डिस्कशंस, हम प्रोजेक्ट्स देते हैं. तो ये सारे मिला के आपको टोटल 20 मार्क्स इंक्लूड होते हैं फॉर द इंटरनल असेसमेंट, जो कि हम बोर्ड को भेजते हैं. बोर्ड में 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स का आपको इंटरनल मार्क्स जाते हैं, विच इज़ फ्रॉम द स्कूल. सो यू नीड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज वेरी केयरफुली एज इट इज़ डायरेक्टेड बाय द टीचर. ओके, नाउ टुडे इन दिस वीडियो I will explain you a very new theme here, which is introduced by CBSE this year only. This is called as Art Integrated Learning. Art Integrated का क्या मतलब हुआ? आर्ट बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग है, डांस है, सॉन्ग है, ड्रामा है, टेक्निकल है. देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट. So CBSE, what CBSE has done
टू नर्चर, टू कीप आवर कल्चर, उन्होंने क्या किया, हर सब्जेक्ट को आर्ट के साथ इंटीग्रेट किया। आर्ट के साथ इंटीग्रेट करने से वो सब्जेक्ट जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा पढ़ने में, और प्लस उसके साथ आपको नॉलेज गेन भी होगा। सो फॉर दैट CBSE हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग in all its affiliated schools. It is a cross curricular approach that utilizes, मतलब अभी साइंस सिर्फ साइंस नहीं है, साइंस इज इंटीग्रेटेड विथ द आर्ट। मैथ सिर्फ मैथ नहीं रहेगा, उसमें भी आर्ट के किसी फॉर्म को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। That utilizes various aspects and forms of art and culture to learn the concepts of various subjects. This approach will strengthen the linkage between education and culture. See, India's culture is very vast. बहुत समृद्ध कल्चर है हमारा। हर स्टेट का अपना डांस, अपना ड्राइंग का फॉर्म, अपने अलग अलग कल्चर होते हैं। सो इस हेरिटेज को संभाल के रखने की जिम्मेदारी हम बच्चों की है, और बच्चे इसको कैसे कर सकते हैं, जबकि बच्चे इसको अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ के लेंगे। सो गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड to do this via this art integrated learning. So we have also decided some of the topics for the science which we are going to integrate. वो टॉपिक आपसे लिंक होंगे कैसे, आपके ही सब्जेक्ट से लिंक रहेंगे। ओके, सो वी हैव टू सी आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स which I have decided for you people. First one is use of different attractive designs and patterns to color or paint corroded iron article. आपको कोरोजन रोकने का उपाय पढ़ना है, तो वहाँ पे पेंटिंग इज़ वन ऑफ द वे, तो इसको हमने आर्ट से जोड़ दिया। यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड अदर डेकोरेटिव मटीरियल टू प्रिपेयर द मास्क यूज्ड इन छऊ डांस ऑफ ओडिशा। आपने लास्ट ईयर देखा था कि हमारे स्टेट को ओडिशा से जोड़ा गया था। महाराष्ट्र एंड ओडिशा आर टू कोलैबोरेटिव स्टेट्स। सो इन आर्ट इंटीग्रेशन ऑल्सो वन प्रोजेक्ट वी हैव टू डू विद द ओडिशा का कल्चर। सो फॉर दैट पर्पज छऊ इज़ द डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा विच वी हैव डिसाइड, जिसमें कि मास्क का यूज़ होता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। सो वी कैन मेक द मास्क ऑफ द plaster of Paris by using plaster of Paris for the Chhau dance. See, we'll give you the more idea via 1-by-1 meeting भी हम लेंगे इसके लिए। अभी आपको एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है। PowerPoint presentation of various topics like food chain, food web, ozone depletion, garbage management, etc. Make different models of organ and organ system by using different household waste material. See, the primary requirement is that हमें बाहर बाज़ार से खरीद के materials को use नहीं करना है। We can use the household waste material to do these projects. This is very much required. Now, how we organize it? We need to form the groups of students. So, for each standard, मान लो 10th A है, 10th B, C, D, तो उसमें हम बच्चों के मान लो 1 से 32, 1 से 30 रोल नंबर्स हैं। देन वी विल मेक द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रोल नंबर वाइज, ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, फिर उस 8 को भी हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एंड वी विल गिव यू वन ऑफ द टॉपिक ऑफ द आर्ट इंटीग्रेशन। देन बिकॉज यू आर एट होम, सो यू डू इट इंडिविजुअली। ये वील कलेक्ट इट बाय द मोड्स ऑफ फोटोग्राफ्स, प्रेजेंटेशंस जो भी हैं वो आप हमको सेंड करोगे, एंड वी विल कीप द रिकॉर्ड ऑफ इट, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू ऑल्सो कीप द रिकॉर्ड्स प्रॉपरली because you are going to get the marks because of these projects. Okay, one project will be allotted to one group. Month wise each subject project will be provided. अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे, हम सब एक बार में कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको मंथ वाइज टीचर्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मान लो 10th A को अगर अगस्त मंथ में साइंस सब्जेक्ट है तो 10th B को कोई और सब्जेक्ट होगा, 10th C को कोई और होगा। एक मंथ में आपको एक ही सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट करना है, एंड यू नीड टू डू द प्रोजेक्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, सो ऐसे हमारा आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग काम करेगा। आप ज़्यादा परेशान मत हो, वी विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। हम 1 by 1 गूगल मीट पे मीटिंग लेके भी आपको गाइड करेंगे।
हियर जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस. ओनली कीप इन योर माइंड, आपके एग्जाम को आपको अच्छे से देना है, बिकॉज देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स. आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपना नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए हमेशा कष्ट करना पड़ता है बच्चे. बहुत आराम से आप चाहोगे कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. यू नीड टू अचीव द हायर स्टैंडर्ड्स. हायर चीज़ें चाहिए, आपको नॉलेज गेन करना है. फॉर दैट पर्पस यू नीड टू डू द स्ट्रगल. आपको पढ़ाई करनी है. सी, दिस इज़ द एडवर्स टाइम. पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 है, आप घर पे बंद हो. मे बी यू आर very annoyed by this condition, but we need to take the self of ourself. हमको उसको बचा के रखना है, हमें बहुत अच्छा काम करना है, हमारे पास समय है अच्छा गुजारने के लिए. we will do it definitely. So good luck for your exams and all the best. You will score very good marks. सी स्टूडेंट्स, अटेंडेंस इज़ कंपलसरी. सबको इस एग्ज़ाम ज़रूर ही अचीव देना है, क्योंकि आप अगर नहीं दोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे. एंड वी नीड द बेस्ट ऑफ 2 एग्ज़ाम मार्क्स, सो दैट फॉर दैट पर्पस यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली. आप बिल्कुल अच्छे से दो. दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल. ओके, सो ऑल द बेस्ट. बाय.